नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को जोड़ लीजिए, ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। सीज फायर का ऐलान होने के बाद पूरी दुनिया ने सोचा था कि अब सुकून में सांस लेगी ये दुनिया, लेकिन कुछ ही घंटे बीते थे। हालांकि सुबह हमने आपको द एसोसिएटेड प्रेस का ट्वीट दिखाया था। इजरायली ऑफिसर के हवाले से उसने छापा था कि इजरायली ऑफिसर कह रहा है कि ईरान पर हम हमले करते रहेंगे, इजराइल करता रहेगा। तो वो खबर सुबह थी, लेकिन लगा कि उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कम से कम अब ठंडा होकर के बैठ जाएगा इजराइल। लेकिन ईरान से धमाके की खबर है, और ये ईरान की जो मेहर है, सरकारी एजेंसी, न्यूज चैनल, उसकी खबर है। वहां पर धमाके हो रहे हैं, ईरान में धमाके और इजराइल में बवाल। ये दोनों मुख्य खबर नहीं है। ईरान में धमाके और इजराइल में बवाल के पीछे जो केंट, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट के, वो डायरेक्टर थे और बहुत ही टॉप अफसर थे, डेकोरेटेड अफसर थे। सीआईए में भी वो रह चुके थे, सीआईए अफसर भी। उन्होंने जो चेतावनी दी है इस धमकी और ये हमला विस्फोट बवाल के बीच, जो उन्होंने चेतावनी दी है, वो चेतावनी बड़ी खौफनाक है। और वो चेतावनी इजराइल को लेकर के। जो केंट ने कहा है कि इजराइल सीज फायर तोड़ेगा, और सीज फायर ही नहीं तोड़ेगा, ये ट्रंप को बर्बाद कर देगा। नेतन्याहू ये ट्रंप को बर्बाद कर देगा। इससे बचने का भी रास्ता बताया है, लेकिन बचने वाला रास्ता अख्तियार करने की हिम्मत है कि ट्रंप में नहीं है, ये सवाल है। उसने बचने का रास्ता ही बताया है कि इसको बिल्कुल गेट लॉस्ट कर दो। हमारे यहाँ तो गेट लॉस्ट अफसर करने लगे हैं नेताओं को। इसको बिल्कुल गेट लॉस्ट कर दो, इसको मदद जो है, सैन्य मदद, आर्थिक मदद, सब बंद कर दो, इसकी पाइपलाइन क्लोज करो, बंद करो, कट कर दो। तभी ये रोका जा सकता है। नहीं तो इतना झूठा, इतना मक्कार है इजराइल कि ये अमेरिका पर भारी पड़ जाएगा। मतलब अमेरिका की बर्बादी के बीज इजराइल में छिपे हुए। मैं सीधा आपको जो केंट की क्लिप सुनवाता हूं, जो उनका बयान है उसकी क्लिप सुनवाता हूं, और फिर सीधे चलेंगे हेमंत भाई के पास। पहले सुनवाइए जो केंट। Great news this evening that there's been a 2-week ceasefire agreed upon tentatively between us and the Iranians. It's unconfirmed yet if the Iranians have accepted this deal as well, but I hope that they have. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. So we have to keep that in mind. It's very good news we took this ceasefire. We have to understand that there is no military solution to the conflict right now. Basically, every action militarily that we've taken has only strengthened the regime, and it's done a lot to destabilize the entire
region and to take away the security and safety of the free commerce of all of the energy and oil and natural gas that flows out of the region through the Strait of Hormuz. So we have to keep our main objective in mind. It's getting that lasting peace, and we will be the more powerful nation for providing that lasting peace and stability. We will not gain a more powerful position by continuing to escalate the conflict or continuing to strike Iran. In order for us to achieve this goal that we have of bringing about a lasting peace, keeping the Strait of Hormuz open, we have to restrain the Israelis. We have to keep that in mind. So I continue to pray for peace, pray for President Trump, pray for him to have clarity, pray for successful peace negotiations, pray for our men and women downrange in harm's way. Thank you. God bless. ये आपने सुन लिया पूरा। हम पहले इसी पर एक बार मैं इसके आगे आऊंगा, खबर इसी से कनेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं अभी आज रुक रहा हूं, नहीं तो अक्सर जोड़ के ही तब जाते हैं। मैं जरा एक बार जो केंट के बयान को पूरी तरह हिंदी में आप लोगों तक विस्तार से समझाने के लिए हेमंत भाई के पास चलता हूं। हेमंत भाई, ये जो केंट की चेतावनी जो है, ये चेतावनी सामान्य समझने में आ रहा है, सैबोटेज कर देगा, वो ये कर देगा, जो है दोबारा से सीज फायर तोड़ करके युद्ध घसीट देगा, बढ़ा देगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं। ये जो केंट की चेतावनी कितनी गंभीर है और इसके क्या मायने हैं, पहले ये आप बताइए, फिर इसी से जोड़ेंगे जो इनकी चेतावनी है, वो चेतावनी जमीन पर नजर भी आने लगी है मुझे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसको कहते हैं राष्ट्रवाद, जो केंट ने करके दिखाया है। कौन है ये जो केंट? ये जोसेफ क्ले केंट हैं, जो अमेरिका के एक राजनीतिज्ञ हैं, ट्रंप की पार्टी के हैं, रिपब्लिकन के, अमेरिकी आर्मी के पूर्व वारंट अधिकारी हैं और सीआईए के सीनियर अधिकारी रहे। और अभी जब ये आप में बात करें, उससे करीब 20 दिन पहले तक ये जो अमेरिका का जो एंटी टेरर जो सेंटर है, आतंकवाद विरोधी केंद्र, उसके निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने इस्तीफा दिया था ये कहकर के जो ये युद्ध में ट्रंप गए हैं, ये युद्ध हमारा नहीं है, ये इजराइल का है, अमेरिका का इससे कोई वास्ता नहीं, सैद्धांतिक तौर पर। उसके बावजूद भी कैरेक्टर ये होता है कि ये आदमी शांति के प्रयासों की सराहना कर रहा है और ट्रंप को नहीं, पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है कि इजराइल किस तरीके से पूरे गेम को सैबोटेज कर सकता है। और इजराइल ये पहली बार नहीं करेगा, इजराइल हर बार करता है ये, वो चेतावनी दे रही। याद कीजिए, जून 2025 एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ अटैक करके जिस तरीके से ईरानियों पे वो किया गया। अभी जो ये 28 फरवरी को जो अटैक किया गया, उस समय ओमान में बातचीत चल रही थी। 2 मार्च को लास्ट राउंड की बातचीत होनी थी और टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया। वैसी सूरत में, हालांकि एज इनकी काफी कम है, 45 साल के ही है, इन्होंने एक आपातकालीन, जो ये आपने दिखाया ना 160 सेकंड का वीडियो है आशीष भाई, स्पेशली जारी किया इस आदमी। क्या कहता है ये? आपातकाल संदेश जारी करते हुए इसने कहा कि इजराइल इस युद्ध विराम समझौते को विफल करने का हर संभव प्रयास करेगा, अपनी पुरानी आदत के मुताबिक। कहा कि इजराइल को रोकने और उसकी सैन्य फंडिंग बंद करने का यही सही समय है, जहां तक अमेरिका का सवाल है। और क्या कहा इन्होंने कहा, साहब ये हमसे हथियार लेता है, गोला बारूद लेता है आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, और प्रयोग क्या करता है, सारे के सारे विरोधियों से को उससे हिट करके उस पूरे एरिया के अंदर दादागिरी करता है। इजराइल के शब्दों पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सरासर झूठे हैं, कोट अनकोट। इजराइल को अपने इशारों पर नचाने से अमेरिका की साख को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उम्मीद है कि इस नापाक ग्रेटर इजराइल परियोजना से अमेरिका खुद को अलग कर लेगा। आज इजराइल की स्थिति पहले से कहीं अधिक खराब है। ये अमेरिका के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है इजराइल से पीड़ित छुटाने का। चेतावनी दी कि इजराइल जानबूझकर ईरान के साथ नए युद्ध विराम का उल्लंघन करेगा और मांग की कि वाशिंगटन तेल अवीव को दी जा रही सारी सहायता तुरंत बंद करे, इससे पहले कि वो इस व्यापक संघर्ष को और नए आयाम दे दे। अमेरिका को नेतन्याहू और जियोनी शासन पर लगाम लगानी चाहिए, अनकोट। 160 सेकंड के इस वीडियो में उसने केवल अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया की आंख खोल दी, ईरान की भी आंखें खोल दी, चेतावनी दे दी कि सजग रहो, कुछ भी हो सकता है। और ये चेतावनी आने के चंद घंटे के अंदर आप देखिए किस तरीके से ईरान की तमाम फैसिलिटीज पर धमाके होने शुरू हो गए। मैंने आपको स्टोरी भेजी अब से 10 मिनट पहले की। ईरान के अंदर जब अमेरिका अटैक नहीं कर रहा, इजराइल उस सीज फायर पैक्ट का एक हिस्सा है, बेशक वो इसमें नहीं था सिग्नेचरी में या जो बातचीत में, सिर्फ ये पाकिस्तान और ये सारे लोग थे।
उसके बावजूद भी एक तरफ पूरी दुनिया पूरे ईरान के अंदर जश्न मन रहा है जीत का, और वैसी सूरत में वहां पर ये धमाकों की आवाजें, आप समझ लीजिए जो केंट कह रहे हैं वो 100% सही है। ना तो ईरान बाज आ सकता, ना नेतन्याहू बाज आ सकता, और ना ही मोसाद बाज आ सकती। मोसाद का ईरान ध्यान में रखिएगा। इजराइल माफ कीजिएगा, इजराइल बाज नहीं आएगा, नेतन्याहू बाज नहीं आएगा, और मोसाद बाज, क्योंकि वहां पर उस देश के अंदर इनके बहुत गहरे एसेट है, मोसाद की बहुत गहरी पैठ है। जिस तरीके से हथियार बांटने से लेकर के तमाम तरह की चीजें जो ट्रंप ने नासमझी में बता दी और सारी चीजों में बता दी, वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है कि हथियार कुर्दों के जरिए भेजे गए थे, तो हथियार अकेले थोड़ी भेजे गए, कुछ और भी भेज दिया गया होगा। और ये तो आप सोचिए ना किस तरीके से पेजर तक बांट देते हैं दुश्मन के बीच में। तो इजराइल का काम करने का तरीका बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। एक तरफ केंट ने बिल्कुल नाम लेकर के नेतन्याहू को और इजराइल को पिन पॉइंट कर दिया है उनके कारनामों के लिए, दूसरी तरफ नेतन्याहू बहुत बुरे तरीके से आशीष भाई फंस गए हैं, बहुत बुरे तरीके से। आपने देखा किस तरीके से वहां का जो मुख्य विपक्षी नेता है यायार लैपिड, उसने बाकायदा ट्वीट करके, और वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको दिखाइएगा स्क्रीन पे, किस तरीके से नेतन्याहू को पूरा एक्सपोज कर दिया है, कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। मैं एक बार खबरें दिखा देता हूं भैया, जरा खबर लाइए, पहले धमाके वाली खबर लाइए, फिर जो है चलते हैं नेता विपक्ष पे। ईरान में सीज फायर के बीच रहस्यमयी धमाके, लवन और सीरी आइलैंड की ऑयल रिफाइनरियों में उठे आग के गोले। ऑयल रिफाइनरियों में कैसे आग के गोले उठने लगेंगे? आगे बढ़िए, जरा खबर दिखाइए, खबर लाइए भीतर, और दो दो जगहों से खबरें आ रही हैं। ईरान में सीज फायर के ऐलान के बाद जब पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है, ठीक उसी वक्त ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं। ईरान के महत्वपूर्ण तेल केंद्रों के अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। ईरान के लवन और सीरी आइलैंड पर स्थित ऑयल रिफाइनरियों में भीषण धमाकों की खबर सामने आई है। इस बीच यूएई ने भी मिसाइल अटैक की बात कही है। यह दावे चिंता पैदा करने वाले हैं कि आखिर कौन है जो मान नहीं रहा है। ये यूएई में भी धमाके की मिसाइल अटैक की बात जो कही जा रही है। अब दो बातें यहाँ पर हैं सवाल, मैं अभी फिर जाऊंगा लेपिड पे, लेकिन उससे पहले दो सवाल। और इस युद्ध में बात सामने आई है, जो 40 दिन युद्ध चला, ईरान ने जहां भी अटैक किया 60% तो पहले बताया, जब जब इस्टेब्लिशमेंट पे उसको किसी अटैक करना हुआ। एक नॉर्मल युद्ध में एक्सचेंज, मिसाइल और ड्रोन एक्सचेंज चल रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन जब जब बड़े अटैक करने हुए तो सूची जारी कर दिया है, पूरी लिस्ट, जैसे स्कूल निकलती है कितने बच्चे पास हुए, वैसे पूरी लिस्ट जारी कर देता है, चस्पा कर देता है कि भैया इन इन ठिकानों, इस देश में यहाँ यहाँ हमला करेंगे, फला ठिकाने से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर हो जाए जो आम लोग हैं, वो बकायदे बता करके कि जनहानि नहीं हो, हम मारेंगे, यहाँ हमला करेंगे, क्योंकि हमारा ये जवाब है इनको। उसने किया। उसने जहां हमला नहीं किया था उसने बताया, जब ऐसे आरोप लगे उसने बताया, जैसे कि बहरीन में एक सिविल जो है सिविलियन एरिया में शुरुआती युद्ध के पहले सप्ताह में मिसाइल गिरी थी। वो मिसाइल गिरी तो बड़ा हंगामा किया कि सिविलियन एरियाज को टारगेट करने लगा ईरान। बाद में अमेरिका में सीएनएन ने ये जो है रिपोर्ट उसको की, पूरी पड़ताल हुई, पूरी पड़ताल के बाद वो रिपोर्ट छपी कि वो पैट्रियाट था, वो डिफेंस सिस्टम का पैट्रियाट था, वही गलती से बहरीन में सिविलियन एरिया में जाके गिरा। मतलब फर्जी में ईरान को बदनाम कर रहे थे। ईरान जो किया वो बता किया, पहले बताया, और जो पहले नहीं बताया वो बाद में बताया कि ये कर दिया है भाई, चेक कर लो जा करके, कर दिया, बताया है उसने हर जगह। नहीं किया तो नहीं, मना किया उसने कई जगहों पर। उसने जैसे जो अमेरिकी दूतावास रियाद में हमला हुआ था उस पर रिपोर्ट आई है 22 दिन, करीब 30 दिन बाद रिपोर्ट आई कि उसकी 3 मंजिला इमारत बहुत क्षतिग्रस्त हुई है। वो किस्मत थी कि उस वक्त रात के वक्त हमला हुआ जब कर्मचारी नहीं थे, नहीं तो पता नहीं कितनी कैजुअलिटी होती। उसमें उस मामले में ईरान ने पहले भी कहा था, जब लारिजानी जिंदा थे, अपने लारिजानी हत्या के से करीब 48 घंटे पहले उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि अमेरिका इजराइल ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो हमको बदनाम करने के लिए खुद ही कई जगहों पर टारगेट करें। रियाद में यूएस एम्बेसी पर हमले में ईरान ने फाइनली
उसने कई बार कहा ये हमला हमने नहीं किया है, ये हमला जो है किया गया है इजराइल की तरफ से। ऐसे कई जगहों पर ईरान ने 3-4 ऐसे पॉइंट्स 3-4 जो है मौके आए जब ईरान ने कहा कि ये इजराइल ने हमला किया है कुछ दोस्तों के नागरिक ठिकानों पर, कुछ ऐसी जगहों पर कि ताकि बाकी समूह को ये एकजुट किया जा सके ईरान के खिलाफ। ये समझिए। अब 2 खबरें आपने देखी, एक तो ईरान में धमाके हो रहे हैं और दूसरी तरफ यूएई ने खबर दी कि जो है हमारे यहाँ मिसाइल अटैक हुआ है। अब जो इतना देर में बोला था उसको अब कनेक्ट करिए हेमंत भाई। ये कहीं यही मक्कार तो नहीं कर रहा है कि उधर 2 बम गिरा करके एक मिसाइल वहां दाग दो, तत्काल होगा कि ईरान रिटेलिएट करके यूएई में दागा। तो बात ये होगी कि जब अमेरिका सीज फायर पे चला गया है तो अमेरिका यूएई में इजराइल का क्या लेना देना? अमेरिका सीज फायर पर है तो ईरान जो है क्यों वहां पर अमेरिका के दोस्तों के चेलों के यहाँ क्यों मिसाइल दाग रहा है? क्या इस लेवल तक ये मक्कारी कर सकता है या कर रहा है कि नहीं चलो आशीष भिड़ाएं? भाई, ये तो कोई भी लेवल नहीं, ये किसी भी लेवल तक जाएगा। ये सेंसिटिव इंस्टॉलेशन छोड़िए, ये किसी बहुत बड़े नेता के ऊपर भी अटैक करवा सकता है, किसी दूसरे देश के। आप समझिए, इजराइल का जो अनडिस्प्यूटेड जो वो है क्लेम, वो क्या है कि हम दुनिया में जहां चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे वहां निपटा सकते हैं। ठीक, ये छोटे मोटे धमाके और ये सारी चीजें तो बहुत छोटी चीजें हैं उसके लिए। मोसाद का पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के अंदर बहुत भयंकर किस्म का होल्ड है, हर जगह पे गहरी पेनिट्रेशन, और वो कभी भी नहीं चाहता, किसी पहले दिन से नहीं चाहता। ये 40 दिन के बाद ट्रंप ने कोहनी पर आकर के सरेंडर किया। इसको बहुत सारे लोग सीज फायर कह रहे, मैं नहीं मानता सीज फायर है, ये 100% सरेंडर है, 100% सरेंडर है ये। और ट्रंप मुक्ति पाके भागा है, मुक्ति पाके। वो जो सारे शब्द प्रयोग कर रहा था ना ईस्टर संडे के दिन, और उसके बाद कल शाम को जिस तरीके से सभ्यता मिटा रहा था, वो उसकी कंप्लीट पागलपन और बनाया हुआ था वो। एंड ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस होल मेस। ये था पूरे का पूरा खेल। और इसको अगर कोई जबरदस्ती यहां लपेटे हुए था 40 दिन से या घसीट रहा था इस युद्ध में, उसका नाम नेतन्याहू है। क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए उसकी मजबूरी थी। लेकिन अब उसके लिए स्थिति आशीष भाई समझिए क्या है। ट्रंप का जो भयंकर विरोध देश के अंदर शुरू हो गया है, बहुत भयंकर विरोध। तमाम लोग उस 25वें संशोधन से लेकर के 25/4 की बात हमने रात को शो भी किया था, जिस तरीके से पूरे अमेरिका में ये चीज चल पड़ी, उसके खिलाफ अलग से, उसके रक्षा मंत्री के खिलाफ अलग से, वो सारी चीजें। वैसी सूरत नेतन्याहू को किसी भी सूरत के अंदर स्टेबलाइज नहीं होने देगी। आप समझिए, जब एक युद्ध विराम हो गया है तो स्पेशली पीएमओ क्या कह रहा है इजराइल का, आपको पता है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उधर से घोषणा हो रही है कि ईरान के साथ सीज फायर हो गया। पता है नेतन्याहू का ऑफिस क्या स्टोरी कर रहा है ऑफिशियली, कि ठीक है वहां हो गया होगा, हिजबुल्ला के साथ हमारा नहीं हुआ, हिजबुल्ला वहां पर अटैक जारी रहेंगे लेबनान के अंदर। यानी कि वो आदमी 5 मिनट की भी शांति बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। ठीक, और कारण सिंपल समझ लीजिए। कारण ये है कि चुनाव 26 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है। 26 अक्टूबर के चुनाव में अगर वो चुनाव हारा तो उसकी सीधा रास्ता घर नहीं जाएगा, वो वहां से सीधा जेल में जाएगा। क्योंकि आपको पता है इजराइल में वहां का जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उसको भी सत्ता रिकग्नाइज नहीं कर रही है, वो शपथ नहीं ले पाया, तक काम नहीं कर पा रहा। और यही कारण देखिएगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे डंका बजाने के लिए इजराइल की संसद में, तो विपक्ष ने कंप्लीट वॉकआउट उस टाइम किया था। ठीक, तो उस पूरी परिस्थिति को समझिए। इजराइल में आज स्थिति यह है कि अगर युद्ध से बाहर आ जाए तो देश की जनता ये पूछेगी कि ईरान से क्या लेकर के आए आप, व्हाट इज योर नेट अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट है आपकी? कुछ नहीं। ये अचीवमेंट लेकर के आए, ये 40 दिन से पूरा देश बंकरों में छुपा हुआ है, ये अचीवमेंट है। कोई छोटी अचीवमेंट तो है नहीं। पूरे के पूरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश करा दिया। सारे एनर्जी के सोर्सेज जितने थे, जितने रिफाइनरीज थी, सारा आधा इजराइल जो है अंधेरे में डूबा हुआ है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। उसका गेम क्या है कि किसी तरीके से युद्ध चलता रहे, देश लड़ाई में चलता रहे, राष्ट्रवाद चलता रहे। लेकिन 15-20 दिन से आपने देखा, जिस तरीके से मैंने कल आपको जिक्र किया था वहां का लेटेस्ट, कि 90% पे युद्ध चला था, कि 90% लोग चाहते थे युद्ध हो। और अब जब कल की बात आई, कल रात लेटेस्ट अपडेट था कि 40% लोग चाहते हैं कि युद्ध हो, 50-60% खिलाफ हो गए। तो आज की तारीख में नेतन्याहू के पल्ले ना तो वो इधर का है ना उधर का है। और जो रही सही कसर है, ये जो चीजें है ना, ये 2 अटैक आपको धमाके सुनाई दिए, ये अभी की घटना है 15 मिनट पहले की, जब हमने रिकॉर्डिंग शुरू की। उससे पहले आज सुबह 3:40 पे ये सारा कार्यक्रम हुआ है, सीज फायर पे सहमति और सारी।
आप तो सो के भी नहीं उठे थे, मैं बहुत जल्दी उठता हूँ। उस समय भी मैंने जैसे ही खोला, सबसे पहले क्या है कि यूएई के अंदर वहां धमाका हो गया, कतर के अंदर वहां हो गया, बहरीन के अंदर वहां हो गया, ताकि इस पूरी खबर को यकीन ना करें लोग के सीज फायर हो गया है। ये कौन कर रहा होगा? इस एक सिंगल सूत्री कार्यक्रम किसका है? इजराइल का। क्योंकि वो दे आर नॉट ए पार्टी टू द होल थिंग। जो युद्ध विराम हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? वो हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच के अंदर। ट्रंप ने कह दिया इजराइल भी इसका हिस्सा है। ठीक, अब क्या करें, मना करें क्या उसको? और करवाया किसने? पाकिस्तान ने। तो इसमें इजराइल डायरेक्ट पार्टी नहीं। वो क्या करेगा? वो खिसियानी बिल्ली कम मानोचे, जैसे आप बड़े डंकापति हैं, अभी अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि दलाल नहीं हम, अभी समझौते का उसका युद्ध विराम का स्वागत कर रहे हैं। जो दलालों ने युद्ध विराम कराया है तो फिर उसका स्वागत क्यों कर रहे हो? इतने कहां से तुम्हारे पास हुआ है? चुप ही रह जाओ ना, करेंगे। वही स्थिति उसकी है वहां पर। और वैसी सूरत में आशीष भाई, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है वहां पर, वो है इजराइल का जो मुख्य विपक्षी नेता है यायर लैपिड। उसने कमाल हाँ, कर वो दिया, उसने ट्वीट किया। वो ट्वीट लाइए जरा, स्क्रीन पर ट्वीट जो लाइए, वो ट्वीट लाइए। जो आपने थंबनेल में कहा ना कि घर में गिरे, बहुत बुरे तरीके से गिरे, आपने हल्का शब्द प्रयोग किया, गिरे, फंस गया है वो। फुल करो ये इसको, देखिए फुल क्या करो। लिखता है। हाँ, ये क्या लिखता है अपना जो विपक्ष का नेता है, विपक्षी नेता या यायर लैपिड, कोट एंड कोट में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में सामने है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। हमारे पूरे इतिहास में ऐसी राजनीतिक आपदा कभी नहीं आई। जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल मुद्दों से जुड़े फैसले लिए गए, तब इजराइल की कोई भूमिका ही नहीं थी। समझिएगा इस बात को जो मैं कह रहा था आपको, कि बातचीत हुई और उसमें नेतन्याहू या इजराइल कहीं है ही नहीं, एज इफ यू आर नॉट ए पार्टी टू द थिंग। जबकि लड़ाई किसने शुरू की? इजराइल ने, और इजराइल ही कहीं पे हिस्सा नहीं। सेना ने अपने सभी निर्देशों का पालन किया, जनता ने अद्भुत धैर्य दिखाया, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही तरह से विफल रहे और अपने द्वारा निर्धारित एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। नेतन्याहू ने अहंकार, लापरवाही और राजनीतिक योजना की कमी के कारण जो राजनीतिक और रणनीतिक क्षति पहुंचाई है, उसे ठीक करने में हमें वर्षों लग जाएंगे। और बाकी बाद में भी उसने लिखता रहेगा बाद में, जो ये उसका इनिशियल रिएक्शन है। तो आप समझ लीजिए कि इजराइल की आज परिस्थिति क्या है। पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को जिस तरीके से फंसा दिया, लाखों लोग बेचारे सड़कों पर पलायन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इवन इजराइल के अंदर पलायन हो रहा है। और जब अब सवाल आ रहे हैं तो वो ये डर्टी ट्रिक्स में आ गया है, और डर्टी ट्रिक्स का माहिर है। नेतन्याहू भी माहिर है, इजराइल भी माहिर है, और मोसाद का तो काम ही है कि इस तरीके की कोई भी इस तरह की चीजें करना, कहीं वो वायलेशन हो जाए। बेसिकली क्या है कि एक दूसरे के खिलाफ इरिटेट करना है। सऊदी में बड़ी अटैक करा सकते, क्योंकि पता है कि सऊदी का जो वो है सीधा वहां फोन करेगा ट्रंप को कि देखिए हमारे यहाँ ये ईरान ने कर दिया। पहले दिन से सऊदी और इजराइल एक है ईरान को बर्बाद करने में। तो ज्यादा टारगेट पे कौन रहेगा? सऊदी। और चिढ़ाने की कोशिश किसको करेगा? साइमल्टेनियसली ईरान को भी। और ईरान की एक आध ऐसी सेंसिटिव जगह पे अटैक कर देगा कि वो रिटेलिएशन करना पड़े। किसी भी सूरत में नेतन्याहू 14 दिन का सीज फायर अफोर्ड नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। वो उसका जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट था वो वैसा ही है जैसे आपके अच्छे दिन थे या खाते में 15 लाख थे, वो होना नहीं। लेकिन लोगों के लिए एक बड़ी चीज दिखा रखी है, लॉलीपॉप टांग रखी है कि ग्रेटर इजराइल बनेगा। उससे भी लोग अब आज जा चुके हैं। तो ये जो सवाल विपक्ष के नेता ने वहां उठा दिए, उसका जवाब इजराइल के पास है नहीं। तो उसका क्या करेगा? वो डर्टी ट्रिक्स करेगा। और इसीलिए जो केंट ने समय रहते केवल राष्ट्रपति ट्रंप को आगाह नहीं किया, बाकायदा सीआईए जहां के वो पहले एजेंट थे उसको आगाह किया, और पूरी विश्व बिरादरी को आगाह किया सुओ मोटो। उसको किसी ने कहा नहीं, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विद इजराइल, उसके बेसिस पे उसने कहा। और जब उसने डायरेक्टर की नौकरी छोड़ी थी, आपको ध्यान होगा जब इस्तीफा दिया, तब भी उसने एक बात कही थी कि ना तो ईरान परमाणु बम बना रहा था, ना उसका हम पर कोई हमले का इरादा था, केवल और केवल इजराइल की लड़ाई है ये, और हम जबरदस्ती फंस गए हैं। ये कह के उसने इस्तीफा दिया था। आज वो उसी इजराइल के जो पूरे कारनामे हैं उनको बता रहा है। 40 दिन की लड़ाई के बाद ट्रंप तो भागने की जगह ढूंढ रहा है कि किस तरीके से जान बचे, क्योंकि वहां पर जो परिस्थिति बन गई है, जो अक्टूबर में यहां चुनाव होना है इजराइल में, आपको पता है नवंबर में सीनेट का भी मिड टर्म चुनाव होना है। जिस तरह की परिस्थितियां अमेरिका के अंदर है, जो पॉपुलरिटी का बेड़ा गर्क उस भाई का हुआ है, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की स्थिति हुई है, अमेरिका आशीष भाई ये हारा नहीं है। इसको हार नहीं बोलते, इसको चारों खाने चितौड़ा बोलते हैं। चारों खाने चित। आप मुझे एक बात बताइए, पहले हारमूज खुला हुआ था, कोई उस पर क्लेम नहीं कर रहा था,
कोई क्लेम हार्मूज नहीं के ऊपर, अब हार्मूज की रजिस्ट्री किसके नाम करवा दी? ईरान के नाम, होगी ईरान ना? के पास। हाँ। कितनी बेशर्मी के साथ ये कह रहा है कि उनको टोल वसूलने दो। ट्वीट में देखिए, देश को रिबिल्ड करने दो, हम उनकी मदद करेंगे। बर्बाद क्यों किया था भाई साहब आपने? जिस चीज पे वो व्यक्ति, जो वो देश क्लेम ही नहीं कर रहा था, वहां से सब फ्री आवागमन था, वहां पर अब लाखों डॉलर का टोल लगेगा। सोचिएगा। तो इसको आप जीत कहेंगे? ये सरेंडर से भी कोई अगर अगला शब्द होता हो तो मुझे, मेरी कोशिश की, नहीं समझ में आया, लेकिन सरेंडर से भी अगली स्थिति थी। एक नंबर एक, खरबों डॉलर का अमेरिका का नुकसान हुआ, मिलिट्री हार्डवेयर का भी खर्चा भी। दो, पूरी अमेरिका की मिलिट्री पावर के तौर पर और एक जिम्मेदार सैन्य शक्ति के तौर पर, दुनिया के एक सूत्री महा सुपर पावर के तौर पर अमेरिका मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। ये आपने देख लिया पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए, कैसे कैसे नुकसान हुए, कौन कौन से जहाज गिरे। ये केवल अमेरिका का नुकसान नहीं है, माफ कीजिएगा, ये अकेला ट्रंप का नुकसान नहीं है। जो अमेरिका कई दशकों से जिस चीज की खा रहा था वो क्या है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हजारों करोड़ के हथियार हर साल बेचने। अब तो वो पूछेंगे भाई साहब आपका तो F-35 भी गिर गया था, F-15 भी गिर गया था, F-16 भी गिर गया था, आपकी तो पेट्रियट और थार्ड भी पिट गई वहां पर, फिर आपके हथियार क्यों लिए जाए? ये सवाल आएगा या नहीं आएगा? ये सारी परिस्थितियां ईरान ने एज ए नेशन विद मिनिमम पॉसिबल डेटरेंस, मिनिमम पॉसिबल, सच कहते थे ट्रंप कि उनके पास कोई वायुसेना नाम की चीज नहीं छोड़ी, उनके पास जो है नौसेना नाम की चीज नहीं छोड़ी। भाई साहब कंधे से F-15 गिरा रहे थे वो लोग, आप सोचिए, कंधे से यहां से मिसाइल मारते थे, हीट सीकर्स। तो ईरान ने तो पूरी दुनिया के सामने वो मॉडल दिखा दिया कि केवल एक चीज से सुपर पावर और दो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी नेतन्याहू ट्रंप, उनको दौड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है, और वो एक ही चीज है, हथियार है, उसको जज्बा कहते हैं, देश की एकता कहते हैं। आप सोचिए, इजराइल के बाद ईरान के अंदर सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं, ईरान के बाद, इजराइल के बाद। पूरे युद्ध के दौरान भाई साहब इजराइल के साथ लड़ाई हो रही है, किसी एक यहूदी के साथ जाति की बात आई हो ईरान के अंदर? कभी नहीं। और आपके यहाँ, अपने यहाँ क्या होता है? सिंगल आउट करो, कितने लाख वोट कट गए बंगाल के अंदर, कितने लाख अपने वोट कट यहाँ गए असम के अंदर। अपने यहाँ तो विदेश में अगर किसी से मान लो लड़ाई हो जाए बाई चांस, तो उससे भले ना निपट पावे, कहते हैं यहीं पे पहले जो यहाँ पर है उनसे निपट लो। सही है। यहीं पर बताने लगते हैं कि आतंकियों की बहन, वो क्या था? वो यही था ना। वैसे तो ईरान में जितने यहूदी थे सबको ईरान वाले कहते आतंकियों के भाई हैं, है? ये हमारा तो ना चर्चे न करो भैया। बड़ा अफसोस होता है कि इस दुनिया वो भूखंड पे हम रहते हैं जिसको लोग क्या कहते थे, मतलब इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए अलग अलग लोगों ने रचनाएं लिख डाली, महाकाव्य लिख डाले। उस भूभाग को ऐसा जो है उसका अभाग कर दिया एक व्यक्ति ने, भूभाग को। क्या करा जाए उसका, उसकी चर्चा मत करिए। एक और दिखाते हैं, हालांकि ये खेल वाली हेडलाइन है लेकिन चर्चा जरूरी है। लाइए जरा। ईरान से युद्ध विराम कर चलते बने ट्रंप, अब इजराइल चुकाएगा कीमत, अमेरिका के फैसले से सदमे में नेतन्याहू। देखो सदमे में तो होंगे नेतन्याहू, लेकिन जो है इजराइल चुकाएगा कीमत। ये भी सच है, ये भी सच है, इजराइल चुकाएगा कीमत, लेकिन अमेरिका नहीं आएगा, ये जो है अभी ये सवालों के घेरे में है। अमेरिका ना आए तो इजराइल का परमानेंट इलाज, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों को परमानेंट इलाज चाहिए होता है, इसका परमानेंट इलाज हो जाए। और इसके इलाज में ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबा होम्योपैथिक टाइप में चलेगा। इसका तो तत्काल जो है वो नरेश त्रेहन टाइप में सर्जरी कोई कर देगा ईरान का डॉक्टर, इसका तत्काल सर्जरी हो जाएगा, ये दुरुस्त हो जाएगा। जय हेमंत नहीं भाई। नहीं, अब आशीष आशीष भाई, इसमें तो आपका इंटरेस्टिंग में आप हंसोगे फिर। मैंने आज बहुत सारी स्टडी की। ये जो आपने दिखाया ना प्रचार पत्र का एक स्क्रीनशॉट दिखाया, ऐसे प्रचार पत्र इस देश में बहुत है, और बहुत सारे पोमेरियंस तो आपके प्रिय ही, क्योंकि आप तो वहां रहे हो चैनल वाले। पता है क्या खबर चला रखी थी? कि सऊदी अरब पाकिस्तान पे बनाया और पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी की पीठ में छुरा घोंपा, क्योंकि उनके साथ अलायंस किया था और ईरान के साथ समझौता करवा दिया। ये पता है क्या है? ये जो साउथ ब्लॉक से जो आप बड़े प्रिय मित्र हैं, बैठते हैं वहां पे, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं संपादकों को, और बहुत सारे ने तो वो ट्वीट भी कर डाले, वो सारा वो जो खींच है ना, खींच तो है किसी बहुत बड़े वाले की, अब वो तो बोल नहीं सकता,
उसका तो राजनाथ कल बता रहा था कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े कर दूंगा मैं। देखा था ना वेस्ट बंगाल का, कल हमने दिखाया भी था। ईद पर तो एक तो प्रोग्राम करना पड़ेगा हेमंत भाई। तो अब ये खींच ले आशीष भाई, ऐसा है, करना ये तो पड़ेगा। जाहिल है, ये जाहिल है, हम इनके ऊपर क्यों तो रिसर्च करें, क्यों अपना माथा नहीं नहीं, खपा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि कितने जो है ना, कितने भयंकर बताओ कितने क्यों, भयंकर खींचे हुए हैं। क्यों करना पड़ेगा, मैं मुझे बता देता हूँ। ये बहुत जो है, बहुत बरनाल लेकर के घूमते हैं, वो रवीश का कार्यक्रम हो तो वहां लिखेंगे बरनाल मोदी जी दे रहे हैं। आज जो है ना, आज अगर प्रोग्राम हम लोग करेंगे तो बरनाल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इन सबको जरूरत है इस समय, इस देश में जितने हैं ये अंधभक्त, इन सबको बरनाल की, और इनके काका को भी चाहिए बरनाल, इन सबको चाहिए। क्योंकि ये मतलब ऐसी स्थिति है कि अगर कोई लाज शर्म वाला आदमी होता ना, तो जो आज हालत है, ये कम से कम 6 महीना मुंह नहीं दिखाते। चुनाव होता तो भी नहीं मुंह दिखाते सब, लेकिन बेशरम है तो उसी में ढिठाई से फिर मुंह दिखा रहे हैं। लेकिन मतलब जितनी इस देश की, हालांकि वो उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं है, हमारे देश की साख पर इन्होंने बट्टा लगाया है, हमारे देश की इज्जत पर। इनका क्या है, झोला है, झोले में अडानी का भरा हुआ है सामान माल पूरा। इनके पास, इनका क्या है, इनकी इज्जत बेइज्जती से नहीं फर्क पड़ता, मुझे हेमंत जी को नहीं फर्क पड़ता, हम तो कतई नहीं फर्क है। अरे कितना भी बेइज्जत हो, बेइज्जत होने के लिए भी इज्जत लाना पड़ेगा, इज्जत लाओ तब ना बेइज्जत होगी। लेकिन इनकी बेइज्जती से इस देश की साख को बहुत चोट पहुंचती है, क्योंकि ये लोग इस देश में सत्तासीन है। इजाजत दीजिए, हम आते हैं, जब बोल दिया तो आएंगे, आते हैं अभी थोड़ी देर में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।